ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آئیے اپنے سبق کی طرف. کل ہم نے کتنی آیات پڑھ لی تھی؟ 103. جی 103 آیات ہماری کل ہو گئی تھیں اور آج ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 104. وَلْتَکُم مِّنکم، اور لازم ہے کہ تمہاری صورت میں، منکم تمہاری صورت میں یا تم میں سے، امتن ایک جماعت، ایک جماعت. یہ والتکمن کے اندر جو لام ہے نا، یہ لام شرطیہ ہے، یعنی ضرور تم میں سے ایک جماعت، امتن ایک جماعت، یدعونا جو دعوت دیں، تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے. یدعونا لفظ ہے دعوت سے، دعوت دینا یا پکارنا، دعا بھی اسی سے لفظ ہے. دعا کا مطلب بھی پکارنا ہی ہوتا ہے اور دعوت دینے کا مطلب بھی پکارنا ہی ہوتا ہے، کسی کو بلانا. تو دعا میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو پھر لوگوں کو پھر ہم بلاتے ہیں کہ تم آ جاؤ. یا کسی سے کچھ پوچھنا مانگنا ہو تو پھر لوگوں سے کہتے ہیں الا الخیر، نیکی کی طرف. وَيَأْمُرُونَ اور حکم دیں بالمعروف اچھے کام کا. وَيَنْهَوْنَ اور منع کریں، نون ہا اس کے اندر روٹ ہے، اس کا نہیں سے لفظ ہے یہ، انل منکر برائی سے. وَأُولَئِكَ یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اچھا اس کے اندر کیا ہے؟ امت مسلمہ سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہی رہے اور نیک کاموں کا حکم کرتی ہی رہے، برے کاموں سے روکتی ہی رہے. وہی لوگ ہیں نجات پانے والے، فلاح پانے. سب سے بہترین کام پوری کائنات کے اندر یہ ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. سب سے بڑا کام اور جس کے اوپر اللہ بڑا راضی ہے، یہ کام ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. یہ ہر بندے کے اوپر فرض ہے، یہ نہیں کہ یہ صرف علماء کرام کے اوپر ہی فرض ہے. اور اس کے اندر یہ بھی چیز نہیں ہے کہ جو عالم ہوں وہی سنائیں بات ہے، دوسرے نہ سنائیں، یا مکمل جو عالم ہے. تو آپ کو ایک ہی آیت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو ایک ہی آیت آتی ہے تو ایک ہی آیت لوگوں تک پہنچائیں. بلغوا عنی ولو آیت، ایک ہی آیت آتی ہے تو ایک ہی سنائیں لوگوں کو. اللہ کی ایک ایک آیت کے اندر اتنا بڑا سبق ہے کہ رونگٹے لوگوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا اتنا زبردست حکم ہے اس کے اندر. یہ تبلیغ حق جو ہے یہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے. برائی سے روک کے آگے آپ نے کسی کو اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو روک کے کم از کم. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو ٹوک دیں نا، کوئی بازار میں جا رہا ہے تو اگر کسی ایک کو ٹوک دیں آپ، مثلا میں نا یہ پڑھانے کے لیے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ بائک سے نا کچھ بچیاں اتری ہیں، کچھ اور بھی اتر رہی تھیں، کچھ ایک بائک کھڑا بھی ہو گیا اور جا کے وہ اسکول کے دروازے پہ سامنے، اور میں پیدل تھی. اچھا وہ بچیوں کی نا شلواریں اونچی تھی ٹخروں سے، ان کے مرد بھی تو ساتھ ہی کھڑے تھے نا، تو میں نے کوئی جھجک نہیں محسوس کی اس بات کے اندر. تو میں نے نا کھڑی ہو کے تو ان سے کہا بیٹا اپنی شلواروں کو نیچے کرو، ٹخنوں سے نیچے، ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں آپ کے بیٹا، یہ کیا؟ تو وہ سب پھر نا اپنی شلواروں کی طرف دیکھنے لگی اور سب نے پھر اس کو کھینچ کے نیچے کرنے لگی. تو کھینچ کے نیچے کیا کرنا، جب اوپر ہوگی تو نیچے بھی ہوگی نا، جو اوپر ہی نہیں تو پھر نیچے کیسے ہوگی؟ تو کم از کم وہ اگر فوری طور پہ کسی نے اثر نہیں بھی کیا نا تو بعد میں وہ ضرور کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیری اچھائی جو ہے وہ پھیلے نہ. اگر بالفرض کوئی نہ بھی حکم مانے،
कोई ना भी कहना माने, कोई इसको ना भी इख्तियार करे, तुझे अजर मिल जाएगा। कम वक्त जो करेगा बुराई को, वो बुराई समझ के तो करेगा ना, वो अच्छाई समझ के तो ना करेगा ना। वो मैंने कहा कि खवातीन के टखने नंगे नहीं होने चाहिए, जो टखने मर्दों के नंगे होने चाहिए, खवातीन के ढांके हुए होने चाहिए। तो कम से कम बात का तो ना किसी को एक बात का पता ही नहीं होता, उनका माहौल इस तरह का होता है, घरों के इस तरह के माहौल होते हैं। और बात का तो ना कुछ खवातीन के पास जब इल्म नहीं होता ना, तो उनकी बच्चियां जब इस तरह का लिबास पहनती हैं तो वो भी खामोश हो जाती हैं, कहती हैं कि सारे ही तो ये कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं होता, दरअसल मसले का ही नहीं पता होता कि जो सारे भी कर रहे हैं तो ये सारे के सारे गलती कर रहे हैं। ये तहम अल्लाह ताला फरमा रहे हैं एक जमात तो खास इसी एक काम में मशगूल रहनी चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम में से जो कोई किसी बुराई को देखे से हाथ से दफा कर दे, यानी रोक दे हाथ से। अगर इसकी ताकत ना हो तो जुबान से रोक दे। अगर ये भी ना कर सकता हो तो अपने दिल से नफरत करे, ये ज़ईफ ईमान है, बिल्कुल जो है वो हल्के दर्जे का ईमान। और एक और रवायत में है कि इसके बाद ये भी है कि अगर वो दिल से भी नफरत नहीं करता तो उसके बाद फिर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है उसके अंदर ईमान है ही नहीं, फिर खत्म है, उसके अंदर मुर्दा है दिल उसका। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अच्छाई का हुक्म और बुराइयों से मुखालफत करते रहो, वरना अनकरीब अल्लाह ताला तुम पर अपना अजाब नाज़िल फरमा देगा, फिर दुआएं करोगे तो कबूल ना होंगी। इस मजमून की और भी बहुत सी हदीसें हैं जो किसी और मुकाम पर जिक्र की जाएंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जहाँ फिर ज़्यादा तवालत हो जाएगी। अच्छा, तो अब बाज़ औक़ात ना हम चार बातें सुन भी लेते हैं। अगर किसी को कहते हैं ना कि ये बात गलत है, रास्ते में चलते हुए, सफ़र करते हुए, तो हम किसी को अगर देखें तो हम उसे कहें कि ये बात ये गलत है और ये काम गलत है और अल्लाह का ये हुक्म है, तो वो कहती हैं कि हमें भी पता है, और फिर आप अपना काम करें, हम अपना करते हैं, आपने अपनी कब्र में जाना, हमने अपनी कब्र में जाना है। तो इस तरह के अल्फाज भी आपको सुनने में मिलेंगे। यानी आप जिसको रोकेंगी वो आपके गले में फूलों के हार नहीं डालेगा, वो आपको चार सुनाएगा भी, लेकिन दूसरे लोग असर कर जाते हैं। कई दफा ऐसा हुआ कि दूसरे लोगों ने असर कर लिया। एक दफा मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो एक औरत ऊंची ऊंची आवाज से कॉल कर रही थी किसी से, ऊंची आवाज से, और सारी गाड़ी उसकी तरफ मुतवज्जो थी, सारी गाड़ी खामोश थी और ऊंची ऊंची आवाज से वो बातें कर रही थी। तो मैंने उसे कहा कि घर की बातें इतनी ऊंची आवाज से नहीं करते, और घर की बातें फिर घर में जाके करते हैं, जे ना गाड़ी में बैठ के नहीं शेयर करते। घर के राज की बातें होंगी, लड़ाई झगड़े की बातें होंगी, बरादरी की या इस तरह की, तो ये इस तरह नहीं करते ऊंची ऊंची आवाज में। तो वो मुझे कहने लगी कि आप अपने कानों में कोई चीज दे लें। मैंने कहा कि चलो मैं दे लूंगी, ऐसे ही कर लूंगी, चलो आइंदा से जब सफर करेंगे तो अपने पास कुछ चीज रखा करेंगे कानों में देने के लिए। तो वो साथ वाली खवातीन जो दूसरी थी ना, तो वो कहने लगी कि बाजी की बात ठीक थी, और फिर ना थोड़ी देर बाद खुद ही कहने लगी हमें लगता है कुछ हमारा लाउड स्पीकर कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया है, हमें ना घर वाले भी रोकते रहते हैं, मोहल्ले वाले भी रोकते हैं, तो आज तो गाड़ी में भी हमें किसी ने टोक दिया है, तो आज के बाद ना आवाज इतनी ऊंची आवाज से बात नहीं करनी। और कहते हैं कि ये मोबाइल जो है आस्था से आवाज भी ये कैच कर लेता है, तो हम ना आस्था आवाज से बात करके देखेंगे कि दूसरा आवाज सुन रहा है हमारी। यानी अब इस्लाह की तरह उनका जहन आ गया था है? तो मुझे उम्मीद है अल्लाह से जरूर है कि जिनको मैंने टोका है वो असर कबूल करें या ना करें, लेकिन जितनी दूसरी खवातीन बैठी हैं वो कम से कम जरूर इस चीज का ख्याल रखेंगी जरूर, तो आपकी बात कभी रायगा नहीं जाएगी। और अगर आप ये समझें कि पता नहीं कि मुझे मोहब्बतें मिल जाएंगी, तो वो भी नहीं। आप हमेशा जब आप लोगों में अच्छाइयां बांटेंगे, तो हमारे नबी करीम अलैहि सल्लम को क्या मिला था? ताइफ में गए थे अच्छाइयां बांटने के लिए, अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए, तो क्या मिला था? वहां से पत्थर मिले थे।
تو यहाँ आपको भी ये मीठे मीठे तबलीगें नहीं मिलेंगी। यहाँ तो फिर पत्थर रोड़े खाने ही पड़ेंगे। कम से कम चल पत्थर रोड़े नहीं है हमारे लिए, तो कम से कम ये कड़वी कसैली बातें तो है ना। खुशी में जाएं, गमी में जाएं, जब आप बात को टोक देंगी तो फिर कड़वी कसैली बातें तो सुननी पड़ेंगी। लेकिन इस तरीके से फिर वो बुराई कम से कम हो जाती है, माशरे से खत्म नहीं होगी, कम तो जरूर होगी, ताकि लोगों को पता चले कि ये गलती है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वला तकूनु, और तुम ना हो जाओ कल्लाज़ीना, इन लोगों की तरह जो तफर्रकू, जो फिरके में पड़ गए, फिरकों में पड़ गए, वख्तलफू, और एक दूसरे के खिलाफ हो गए। इख्तलाफ, वक्त लफ्ज़ इख्तलाफ से, और एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ये ना आपके पास पेंसिल हो और कुरान पाक खोल के बैठी हो तो इसके ऊपर ही आपने लफ्ज़ का रूट लिख लिया करें। जो हमारी ज़ुबान के साथ मिलते जुलते लफ्ज़ होते हैं ना, तो कम से कम उनको साथ लिख लिया करें, ताकि आपको तर्जमा करना आइंदा से आसान हो जाएगा। वख्तलफ लफ्ज़ इख्तलाफ से, एक दूसरे के वो खिलाफ हो गए। मिन बाद, इसके बाद, मा जाअहु मुल बय्यिनात, जब आ गई, जा आ गया, बय्यिनात वाज़े दलीलें, जब उनके पास अल्लाह की तरफ से वाज़े दलीलें आ गईं। कैसे? अंबिया के हाथों। व उलाइका, और ये वो लोग हैं, लाहुम, इनके लिए है, अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पिछले लोगों की तरह ना हो जाओ जो इख्तिलाफ में पड़ गए, फिरकों में पड़ गए। ऐसा नहीं करना आपने। तुमने नेक बातों को हुक्म करना है, खिलाफ शरअ बातों से रोकना नहीं छोड़ना आपने। मुस्नद अहमद में एक हदीस है, हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के लिए जब मक्का शरीफ में आए तो ज़ोहर की नमाज के बाद खड़े होकर फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अहले किताब अपने दीन में इख्तिलाफ करके 72 ग्रोह बन गए थे, और इस मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे। ख्वाहिशात नफसानी और खुशफहमी में होंगे कि बड़े हमें दर्जे मिलेंगे, बस मरने की देर है तो हमारे लिए तो खुले हुए हैं जन्नतें। बल्कि आपने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जिनकी रग रग में नफसानी ख्वाहिशें इस तरह घुस जाएंगी जिस तरह कुत्ते के काटे हुए इंसान की एक एक रग और एक एक जोड़ में इसका असर पहुंच जाता है। ए अरब के लोगों, तुम ही अपने नबी की लाई हुई चीज पर कायम ना रहोगे तो और लोग तो बहुत दूर हो जाएंगे। फिर अब देखें कि इसके अंदर कितनी बड़ी तनबीह है, फिरकों में बटना ही नहीं। और आज सबसे पहले पूछेंगे आपका फिरका क्या है? भाई हमारा कोई फिरका नहीं, हमारा फिरका कुरान और हदीस है, बस इसके अलावा हमारा कोई फिरका नहीं है। कुरान और हदीस के ऊपर जो चलेगा बस वही ठीक है, दूसरे सारे गलत हैं। तो कहते हैं वो फलां काम जिसने किया उसके अंदर क्या हर्ज है, वो फलां काम किया उसके अंदर क्या हर्ज है। भाई फलां काम हमारे नबी ने नहीं किया, ये छोटा हर्ज है कोई? आप नबी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसके अंदर इजाफा कर रहे हैं, तो ये इजाफा जो है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर नया काम जो गमराही है और हर गमराही दोज़ख की तरफ ले जाती है। हमारे नबी इन अल्फाज को हर खुतबे से पहले पढ़ते थे, गोया उनके पास ये एक नुस्खा कीमिया था। ये अल्फाज क्या थे? नुस्खा कीमिया था उनके पास कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर नया काम गमराही है। ये नहीं कि कुछ अच्छे काम होंगे तो वो गमराही नहीं है, ये नहीं कहा। कहा कुल्लु बिदअतिन, हर नया काम, और कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गमराही जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाली है। ये नहीं कहा कि कुछ नई बातें जो होगी वो अच्छी होंगी, वो नहीं लेके जाएगी, नहीं, हर गमराही जहन्नम की तरफ लेके जाएगी। तो हमें सिर्फ उतने ही काम पे इक्तफा करना चाहिए जितना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डरना चाहिए हमें अल्लाह से कि हम क्यों अल्लाह की शरीयत को चेंज करने लग गए। आज ये देखिए कुछ लोग हैं ये 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर रहे हैं और कहते हैं कि ये सुन्नत है, ये हमारे नबी की सुन्नत है, तो वो इतनी शादियां कर रहे हैं। और
सुन्नत तरीका है क्या, वो करने किस लिए हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है ज्यादा औलाद की चाहत के लिए, कि ज्यादा बच्चे होंगे, और नेक औलाद की चाहत के लिए कि मैं उनको नेक बनाऊंगा, माशरे अंदर मफीद रुकन बनेंगे वो उम्मत मोहम्मदिया की। एक तो वो शान बढ़ाएंगे क्योंकि उनसे नेक नस्लें पैदा होंगी और वो लोगों को नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, और जा फिर किसी यतीमों को सहारा देने के लिए, किसी गरीब को सहारा देने के लिए, किसी बेवा को सहारा देने के लिए। वो तो हमारे अंदर चीजें हैं ही नहीं, जो सहारा देने वाली तो बात है ही नहीं किसी के अंदर भी। और है क्या चीज है, नफसानी ख्वाहिशें। नफसानी ख्वाहिशें इस तरह घुस जाएंगी जिस तरह कुत्ते के काटे हुए इंसान के एक एक रग और एक एक जोड़ में जहर फैल जाता है। तो ये ख्वाहिशें हैं जो हमारे अंदर फैली हुई है ना, ये ख्वाहिशें हैं। ये ख्वाहिशों की तकमील के पीछे भाग रहे हैं और नाम सुन्नतों को लगाया हुआ है, और किसी बीवी के हुकूक नहीं अदा होते। सब कोई गिले, सब कोई शिकवे। क्यों गिले शिकवे हो, जब हक पूरा हो जाए फिर क्यों गिला शिकवा हो। हर चीज के अंदर हक पूरा करना है। ये नहीं कि वो पीछे को बिगाड़ के रख लेना है, गंवा के रख लेना है और आगे की तरफ दौड़ पड़ना है। पिछली औलाद को फेंक देना है, पिछली औलाद को जानना नहीं, उनको मोहब्बत, उनका क्या कसूर, औलाद का क्या कसूर है, उनको मोहब्बत क्यों नहीं देने। अभी ये थोड़े ही दिनों की बात है, जो हमारे जानने वाले हैं, बड़े ही अजीज मोहब्बतों वाले लोग हैं माशाल्लाह, और मदरसे चलाने वाले, मस्जिदें चलाने वाले, अपनी पाकटों से बनाने वाले। बेटियां उल्मा बनाई उन्होंने, आलमा बनाई, हाफजा बनाई, दीन वाले घरों में भी रिश्ते किए। अच्छा, 2-3 बच्चियों को डिवोर्स हो गई, उनको दीन वाले घरों से डिवोर्स हुई उनको, और वो भी दीन वाले थे, हाफिज आलम थे वो भी हैं। इतनी हैरानगी होती है लोगों की तरफ देख के। और ये थोड़े दिन में मुझे जो खबर मिली कि 5 बच्चे उनकी बच्ची के वो मुझे मिली मुझे वो 5 बच्चे उसके खावद ने शादी और कर ली है। ये पहले भी ये दूसरी की थी, पहले वो तलाक दी हुई थी, ये दूसरी की थी, और अब तलाक दे के चला गया है और साथ धमकियां भी दे के गया है कि अगर मेरे ऊपर केस बनाया तो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं फायर मार दूंगा सबको, तो मैं आपको भी मार दूंगा, तो आपके भाइयों को भी मार दूंगा, तो मेरे पीछे किसी ने कोई जो है वो बात नहीं चलानी, किसी बच्चे का मैंने कोई खर्चा नहीं देना, खबरदार मुझसे किसी ने खर्चा मांगा तो, और तलाक दे के ज़बानी कलामी और वो घर से चला गया है। ये है तरीके। तो जब दीन वाले लोगों का ये हाल है तो दूसरे लोग फिर कहां जाएंगे। अच्छा, अगली आयत की तरफ आए। यौमा, उस दिन तब यजू सफेद होंगे, वजूहन कुछ चेहरे, व तस्वद्दु और स्याह होंगे, वजूहन कुछ चेहरे। उस दिन किस दिन? क़यामत के दिन, जब महशर का दिन होगा। फ़ामल्लज़ीना, फा का मतलब होता है पस, और लाम का मतलब क्या था? जरूर, लाम ज़बर ला, जरूर। और या फिर वल तकुम, जिस तरह इसके अंदर भी लाम आ जाए तो उसका मतलब होता है यही, जरूर। अच्छा, तो फ़ामल्लज़ीना पस, लेकिन वो लोग नस्वद्दत जो स्याह हो गए, वजूहुहुम, हम उनके, वजून होता है चेहरा, वजूहुन वजून की जमा वजूहुन, हम उनके लिए, उनके चेहरे। अकफरतुम, उनसे कहा जाएगा, ये हमजा जबर आ, क्या कफरतुम, क्या तुमने कुफर किया, बादा ईमानिकुम, अपने ईमान लाने के बाद, फजूकू, तो चखो, जुकुल अजाब, अजाब, बिमा, इस वजह से के। अच्छा, ये जब ना अलग अलग पढ़ते हैं ना बाज़, फजूकुल अजाब, तो ये जुकुल अजाबा कहना है, और या फिर अगर अलग अलग बोला लफज तो फिर अजाबा कह लें, तो फिर इसको अल अजाबा नहीं कहना, कुल अजाबा ही बोले फिर है। बीमा, इस वजह से कुन तुम तकफरून, थे तुम कुफर करते।
अच्छा, वो क़यामत का दिन होगा, महशर का दिन होगा। कुछ लोगों के चेहरे मुंह सफ़ेद होंगे और नूरानी होंगे, और कुछ लोगों के चेहरे स्याह होंगे। इस हदीस की बहुत सारी संदें हैं, और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला का एक फरमान भी है, और उन्होंने कहा है कि कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने वालों के चेहरे सफ़ेद और नूरानी होंगे, और जो नए नए काम दीन कदर करेंगे अहले बिद्दत और मुनाफिक लोगों के मुंह काले होंगे। ये हजरत इब्ने अब्बास का फरमान है। अच्छा, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि काले मुंह वाले मुनाफिक होंगे जिनसे कहा जाएगा तुमने ईमान के बाद कुफर क्यों किया, अब इसका मजा चखो। और सफेद मुंह वाले अल्लाह रहीम करीम की रहमत में हमेशा हमेशा रहेंगे। हजरत अबू इमामा ने जब खारजियों के सर दमिश्क की मस्जिद के जीनों पर लटके हुए देखे तो फरमाने लगे ये जहन्नम के कुत्ते हैं, इनसे बदतर मकतूल रुए जमीन पर कोई नहीं, इन्हें कत्ल करने वाले बेहतरीन मुजाहिद हैं। फिर आयत यौम तबजज़ु पड़ी कि तो फिर एक सहाबी ने कहा क्या जनाब रसूल से आपने ये सुना है? फरमाया एक दो दफा नहीं बल्कि 7 मरतबा। अगर ऐसा ना होता तो मैं अपनी जुबान से ये अल्फाज निकालता ही ना। तो ये हमें अपने चेहरों को नूरानी करने की फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों में लिख ले जिनके चेहरे नूरानी होंगे। तिलका आयतुल्लाह, ये अल्लाह की आयात हैं। नतलुहा, हम इन्हें पढ़ते हैं, अल्लाह का तुझ पर बिलहक की हक के साथ, वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, युरीदु, इरादा करता, जुल्मन लिल आलमीन, किसी जुल्म का जहानों के ऊपर। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये दुनिया और आखिरत की यह बातें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर अल्लाह ताला खोल के बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आदल हाकम है, वो जालिम नहीं है, वो हर चीज को खूब जानता है, हर चीज पर खूब कुदरत रखता है। फिर नामुमकिन है कि वो किसी पर जुल्म करे। किसी के मुंह काले हुए तो वो इसी लायक थे। जमीन और आसमान की कुल चीजें इसी की मलकियत में है, इसी की गुलामी में है, और हर काम का आखिरी हुक्म इसी की तरफ है। और बाइख्तियार हाकम दुनिया और आखिरत के मालिक अल्लाह ताला ही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। दिल का आयातुल्लाह ये हो गए। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। व इलल्लाहि, और अल्लाह ही की तरफ तुरजाउल उमूर, लौटाए जाते हैं सारे मामलात, अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। यानी ये कायनात का खालिक और मालिक है जब अल्लाह ताला, तो सारे काम ही फिर उसी के हैं, इसमें किसी और का कोई दखल ही नहीं। कुन तुम हो तुम खैरा उम्मती, सबसे बेहतर उम्मत, उखरिजत, जो निकाली गई है, लिन्नासी, लोगों के लिए, तअमुरूना, तुम हुक्म करते हो, बिल मारूफी, नेकी का, व तनहौना, और मना करते हो, अनिल मुनकर, बुराई से, व तुमिनूना बिल्लाहि, और ईमान रखते हो अल्लाह पर, वलौ आमाना, और अगर ईमान ले आते, अहलुल किताब, अहले किताब, लकाना, तो यकीनन खैर लहुम, बेहतर होता इनके लिए, मिनहुमुल मोमिनून, इनमें से कुछ ईमान वाले हैं। मिनहुमुल मोमिन, कुछ ईमान वाले हैं। अक्सर हूँ, अक्सर इनके फासिकून, फासिक हैं। तो ये कौन लोग हैं? यानी बेहतरीन उम्मत तुम हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो, नेक बातों को कम करते हो, बुराइयों से रोकते हो। ये उम्मत मोहम्मदिया है जो बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह पर ईमान लाते हो। अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो इनके लिए बेहतर था। अहले किताब जो ईमान नहीं लाए, कुछ ईमान भी ले आए थे, इनमें ईमान वाले भी हैं, लेकिन अक्सर तो फासिक ही हैं। सबसे बेहतरीन उम्मत मोहम्मदिया,
अल्लाह ताला खबर दे रहा है कि उम्मत मोहम्मदिया तमाम उम्मतों पर बेहतर है। सही बुखारी शरीफ में भी है, हजरत अबू हुरैरा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, तुम औरों के हक में सबसे बेहतर हो, तुम लोगों की गर्दनें पकड़ पकड़ कर इस्लाम की तरफ झुकाते हो। और मुफस्सिरीन भी यही फरमाते हैं, मतलब यह है कि तुम तमाम उम्मतों से बेहतर हो और सबसे ज्यादा लोगों को नफा पहुंचाने वाले हो। अबू लहब की बेटी हजरत दरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, एक मरतबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, और आप इस वक्त मिंबर पर थे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा शख्स बेहतर है? आपने फरमाया, सब लोगों से बेहतर वो शख्स है जो सबसे ज्यादा कारी और कुरान हो और सबसे ज्यादा परहेजगार हो, सबसे ज्यादा अच्छाइयों को हुक्म करने वाला हो, सबसे ज्यादा बुराइयों से रोकने वाला हो, सबसे ज्यादा रिश्ते नाते मिलाने वाला हो। तो ये कितनी खूबियां हो गई। सबसे बेहतरीन शख्स कायनात का क्या हम नहीं बन सकते? क्या ये काम मुश्किल है? हम अपने अंदर ये सिफात पैदा नहीं कर सकते? सबसे ज्यादा कारियल कुरान हो। कारियल कुरान का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला, या फिर ज्यादा कुरान पढ़ने वाला। जो ज्यादा कुरान पढ़ना क्या है? जो जबरे देर लगाते जाओ और आगे निकलते जाओ, पढ़ता कुछ भी नहीं, और उसके खिलाफ सारी जिंदगी काम कर करके अल्लाह के सामने चले जाओ कि अल्लाह मैं कुरान पढ़ती थी। तो अल्लाह ने फरमाया, तेरा अमल, हमारा अमल गवाही दे के हम कुरान पढ़ने वाले हैं। हमें जुबान से ना लोगों को बताना पड़े कि हम कुरान पढ़ने वाले हैं। कितनी खवातीन आपने कभी देखी थी गलियां बाजार में किस तरह बेपर्दा फिरती हैं और ऊंची ऊंची आवाजें लगाती हैं और गालियां देती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, गलियों में खड़े हो के बेहुदा जो है वो गालियां बकती हैं। तो कहती हैं कि हमने तो रमजान शुरू हुआ तो रोज के हम 5-5 पारे पढ़ रहे हैं, तो 10-10 पारे पढ़ रहे हैं, तो तीसरे दिन कुरान खत्म कर रहे हैं। तो इनके अफवाल और अकवाल से पता क्यों नहीं चलता कि ये इतने इतने कुरान पढ़ने वाले हैं? कुरान तो जिंदगी में एक ही दफा आप पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे तरीके से किस तरीके से जिंदगी गुजार रही है। तो आपके अफाल और अमाल से पता चल जाएगा जो कुरान पढ़ने वाले हैं। तो जो अमल है आपका साबित करेगा कि आप पढ़ने वाले हैं कि नहीं पढ़ने वाले हैं। तो कुरान को पढ़ना समझ के और परहेजगारी इख्तियार करनी। परहेजगारी क्या है? हर अच्छाई को हमने लेना है, हर बुराई से हमने बचना है, और वो चीज जो हमें शक में डाल दे उससे भी बचना है, और जो काम नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया और ना ही किया उसको भी नहीं करना। परहेजगारी, परहेज क्या होता है? कहते हैं कि जब कोई बंदा बीमार होता है तो ये फलाना चीज जो है ना ये नहीं इसने खानी, और फिर वो चीज भी नहीं खाता, और जो उसके करीब करीब होती है वो भी नहीं खाता। मसलन किसी को जख्म होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि ये फलाना चीज जो है ये नहीं खानी, इससे रेशा पीप वगैरह पैदा हो जाता है, तो फिर वो भी नहीं खाते हम। और वो ऐसी चीज जो हमें पता है, खुद से पता है कि ये भी इस तरह का मामला जख्म खराब करने में आती है, तो फिर वो भी नहीं खाते। ये है परहेज, कि जो चीज मिलती जुलती है उसको भी छोड़ दें। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस आपने सुनी है पहले कि हलाल वाज़े और हराम वाज़े, और उसके अंदर कुछ मुश्तबा चीजें हैं जिसके ऊपर हमें शुबा हो जाता है कि ये शायद हलाल है या नहीं है, मुश्तबा को भी छोड़ दें। क्या ये है परहेजगारी? परहेजगार बन जाए। ऐसा ना हो कि वो मुश्तबा जो हमने चीज खा ली है या मुश्तबा काम हमने कर लिया है तो वही जो हमारे सारे अमाल की बर्बादी करके रख दे। सबसे ज्यादा अच्छाइयों का हुक्म करने वाला हो, सबसे ज्यादा अच्छाइयों का हुक्म करने वाला। तो हुक्म किसके साथ करेंगे? कुरान के साथ ही करेंगे। तो जब कुरान का हमें इल्म नहीं होगा तो क्या किसी को हमने अच्छाइयों का हुक्म देना है? तो सबसे ज्यादा अच्छाइयों का हुक्म करने वाला का मतलब यही है, चलते फिरते उठते बैठते आते जाते जो भी नजर आया, खुशी है गम है, जो भी हम खिलाफ शरा काम देखते तो फौरन उसको रोकना है, और सबसे ज्यादा बुराइयों से रोकने वाला हो, सबसे ज्यादा रिश्ते नाते मिलाने वाला हो। अगर कोई नहीं मिला रहा, बार बार खींचने के कोई नहीं मिलाता, तो चलो सलाम दुआ रख लिया करें बस, ताकि अल्लाह के यहाँ कह सके लोग कि अल्लाह हम तो मिलाने वाले थे लेकिन ये नहीं मिलाने वाला था, ये नहीं मिलता था मेरे साथ। और एक हदीस में भी है कि हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
एक आदमी है, उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे रिश्तेदार इस तरह के हैं, मैं उनके साथ तल्लक जोड़ता हूँ, वो मेरे साथ तोड़ते हैं। मैं मिलाने में रहता हूँ लेकिन वो मेरे साथ नहीं मिलते, वो रहते हैं हर वक्त चक्कर देने में। तो आपने फरमाया कि फिर तो तुम उनके मुंह में गरम गरम राख फेंक रहे हो, यानी ये नहीं कह दिया कि आप चलो तोड़ दें उनके साथ, नहीं। तो चलो जिस तरीके से हो मामले को निपटाते चलें। अच्छा, इसके अलावा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन ज़माना है वो मेरा ज़माना है, सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर इसके बाद इससे मिला हुआ ज़माना, फिर इसके बाद वाला। एक और वायत में भी है वक़ज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, हमने तुम्हें बेहतर उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो, अल्लाह के नज़दीक तुम सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हो। यह मशहूर हदीस है, इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन कहा है। इस उम्मत की फजीलत की एक बड़ी दलील इस उम्मत के नबी करीम अलैहिस्सलाम की अफजलियत है। आप तमाम रूह के सरदार, तमाम रसूलों से ज़्यादा इकराम और इज़्ज़त वाले, आपकी शरअ इतनी कामल और इस शरीयत का थोड़ा सा अमल भी और उम्मतों के ज़्यादा अमल से बेहतर और अफजल है। तो सही बात तो यही है कि ये आयत सारी उम्मत मोहम्मदिया को शामिल है इस आयत में, कि सारे के सारे लोगों को अच्छाई का हुक्म दिया और बुराई से रोका। हज़रत अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वो नेमतें दिया गया हूँ जो मुझसे पहले कोई नहीं दिया गया। लोगों ने पूछा वो क्या बातें हैं? आपने फरमाया, मेरी मदद रूब से की गई, मैं जमीन की कुंजियां दिया गया हूँ, मेरा नाम अहमद रखा गया है यानी तारीफ किया गया, मेरे लिए मट्टी पाक की गई है, मेरी उम्मत सब उम्मतों से बेहतर बनाई गई है। अच्छा, और आगे चलते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत, वो हो गई। और ये अगली, लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा, वो हरगिज़ नहीं नुकसान पहुंचाएंगे तुम्हें जी, यहीं से है ना। अच्छा, पिछली आयत की सारी की तशरीह हो गई थी। अच्छा, पिछली आयत के अंदर एक ये चीज़ भी थी कि अगर वो ईमान ले आते अहले किताब तो यकीनन बेहतर होता उनके लिए, बलौम मिन अहलुल किताब लाकाना खैर लहुम, लेकिन इनके अक्सर जो हैं वो फासिक ही हैं। अहले किताब में से कुछ लोग ईमान भी ले आए थे और वो इन आयात से, इन बातों से वो बरी जुम्मा हैं, क्योंकि उन्होंने राह हक को कबूल किया। लयज़ुर्रुकुम, वो हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तुम्हें। ज़रर लफ्ज़ इसके अंदर असल लफ्ज़ है ज़रर, इल्ला अज़ा, मगर मामूली तकलीफ, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर मामूली तकलीफ है। वयुकातिलुकुम, और अगर वो तुमसे लड़ेंगे, युवल्लुकुमुल अदबारा, तो फेर जाएंगे तुमसे पीठें। अदबार दुबर की जमा, दुबर कहते हैं पीठ को। तो वल्लुकुम, युवल्लुकुम ये लफ्ज है वल्ला से, वल्ला का मतलब होता है मुंह फेर जाना। तो फेर जाएंगे तुमसे पीठें, सुम्मा फिर ला युनसरून, वो मदद नहीं किए जाएंगे। ज़ुरिबत, मसल्लत कर दी गई, अलैहिमुज़्ज़िल्लत, तो इनके ऊपर जिल्लत, आइना मासुकिफू, जहां भी वो पाए जाएं, इल्ला बिहाब्लिम मिनल्लाहि, मगर पनाह के साथ अल्लाह की, वहाब्लिम मिनन्नासी, और लोगों की पनाह की, वह बाऊ, और वो लौटे विगाज़बि मिनल्लाहि, भारी गजब के साथ अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह उनके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो गए। वह ज़ुरिबत, और मुसल्लत कर देगी, ज़ुरिबा लफ्ज़ ज़रबा से मारना, तो ज़ुरिबत मार देगी, मुसल्लत कर देगी उनके ऊपर, अलैहिमुल मुस्कानत, इन पर मुहताजी, मुस्कनत मुहताजी, गरीबी, मुफलसी, ज़ालिका ये बेअन्नहुम, इस वजह से कि
وہ کانو یکفرون تھے وہ کفر کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور قتل کرتے انبیاء کو بغیر حق حق کے بغیر ذالک یہ بما عصوا اس وجہ سے کہ انہوں نے عصوا کو نافرمانی کرنا وَقَانُوا اور تھے وہ یعتدون حد سے گزرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن معمولی سی تکلیفیں ایک دوسرے کو وہ جان وہ دے سکیں گے تمہیں، اگر وہ لڑیں گے تو پھر اس کے اندر وہ شکست کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو فتح دے گا۔ تو مومنوں کو بھی چاہیے کہ جہاں جتنی اس آیت میں صفتیں بیان ہوئی ہیں ان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور لوگوں کو اچھائی حکم دیں، برائی سے روکیں، تو پھر ہی اللہ ان کا ساتھ دے گا نا۔ حضرت عمر بن خطاب نے نا اپنے حج میں ایک دفعہ اسی آیت کی تلاوت کی، یہی آیت تأمرون بالمعروف کی، کہا کہ تم اس آیت کی تاریخ میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یہ اوصاف بھی اپنے میں پیدا کر لو۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ان کاموں کو چھوڑ بیٹھے تھے جن کی مذمت کلام اللہ نے کی، اور فرمایا قانون لا یتناہون عن المنکر فعلوہ، وہ لوگ برائی کی باتوں سے لوگوں کو نہیں روکتے تھے۔ ان طرح کی آیات کا نا آگے بہت مفصل بیان آئے گا، وہ کونوا قردۃ خاسئین کے اندر، جو جہاں مندرجہ والا آیات میں تو مسلمانوں کی ایمانداروں کی تعریف و توصیف بیان ہوئی ہے، تو اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی میرے آخر الزمان نبی پر ایمان لاتے تو انہیں بھی یہ فضیلتیں ملتی، لیکن ان میں سے اکثر کفر اور فسق اور گناہوں پر جمے ہوئے ہیں، ہاں کچھ لوگ با ایمان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو خوشخبری دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ بشارتیں دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اپنے گھبرانا نہیں ہے، اللہ تمہارے مخالفین پر تمہیں غالب رکھے گا۔ چنانچہ خیبر والے دن اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا، ان لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان تھے، اور ان سے پہلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کو بھی اللہ نے ذلیل و رسوا کیا۔ اس طرح شام کے نصرانی صحابہ رضی اللہ عنہ کے وقت میں مغلوب ہوئے اور ملک شام ان کے ہاتھوں سے سارے کا سارا ہی نکل گیا، ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا، اور وہاں ایک حق والی جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک حق پر قائم رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر ملت اسلام اور شریعت محمد کے حکم کے مطابق فیصلے کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ قبول نہیں کریں گے، وہ صرف اسلام ہی قبول فرمائیں گے، یعنی صرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت اور پستی ڈال دی گئی، ہاں اللہ کی پناہ کے علاوہ کہیں بھی امن و امان عزت نہیں ہے کسی کی بھی، یعنی اگر کوئی اللہ کی پناہ میں آ گیا جو کسی نے پناہ ان کو دے دی تو ہے، لیکن ذلت اور بچارگی ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ اچھا یہ حبل جو ہے نا، تو حبل سے مراد الا بحبل من اللہ، اللہ کی پناہ کے ساتھ، جو اللہ کی پناہ ہے نا یہ، تو یہ اللہ کا عہد ہے، اس سے مراد یہاں اللہ نے جو عہد کیے تھے ان لوگوں سے وہ عہد انہوں نے توڑ دیے، اور اگر اللہ کی عہدوں کو رکھیں تو پھر ان کو پناہ مل جائے گی۔ تو یہ عہد جب انہوں نے توڑ دیا تو غضب کے مستحق ہوئے اور مسکینی ان کے اوپر چپکا دی گئی، ان کے کفر اور انبیاء سے تکبر، حسد اور سرکشی وغیرہ کا بدلہ ہے جو سارا کچھ ہے، کیونکہ ان نبیوں کے ساتھ انہوں نے ظلم زیادتیاں بڑی کی تھیں، اس باعث ان کے اوپر ذلت، پستی اور مسکینگی ڈال دی گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دی گئی۔ ان کی نافرمانیوں اور تجاوز حق کا یہ بدلہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور دن کے آخری حصے میں اپنے اپنے کاموں میں بازاروں میں لگ جاتے تھے، یعنی ان کے اوپر کوئی یہ نہیں لیتے تھے کہ یہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا ہے، یا کوئی ذہنی ٹینشن نہیں تھی ان کے اوپر۔ تو آج بھی دیکھیں مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔
اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس طرح کے